Okay, so let's start with module 7, graph theory. Okay, we have done till module 6. Module 6 तक में, if anyone is having any issues, you too. Till module 1 to 6, if anyone is facing any problem in any question, we will discuss after we finish this module 7. Okay, I'll take problems, basically revision of all 1 to 7 modules after the 7th module is done. ठीक है, के मैप क्वेश्चन जो था एग्जाम में T2 में, उसमें कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है. ठीक है, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट एज वेल. ठीक है, let's start with module 7, graph theory. So what we are going to cover is all about graphs, subgraphs, operations. Okay, let's see. So graph is nothing. We represent a graph with two things. One is vertices, second is edges. Okay, a non-empty set of vertices and E. V is a, so in every graph there is V and then E. So it's like a data structure. V is set of vertices, E is edges in that graph. Okay. Each edge has either one or two vertices associated with it, called its endpoints. How one? Two vertices is fine. There is an edge from A to B, right? But how one? So there is a self loop from same vertex to itself. Okay. So edge is said to connect its endpoints, that is vertices. Okay, so this is example. So how do we represent graph in computers? By vertices and edges. So vertices we have S, U, V, W, X, Y, Z, and E we have X, comma S. That is we have a edge from X to S. Okay. Uh, okay. So this is degree. Degree of a vertex is number of edges incident on that vertex. So vertex A has degree 2 because there are two edges. First edge is from A to C, second is from A to B. Okay. So degree of vertex A is 2. Similarly, degree of vertex B is 2 and then C is 3. Okay. Now, a degree of a graph is the degree of a graph is the largest vertex degree of that graph. That means, for example, in previous graph, highest degree was 3. So, the degree of this whole graph would be 3. Now, even an odd vertex, if a degree of a vertex is even, vertex is called even vertex. If degree of vertex is odd, vertex is called odd vertex. Okay. In a graph, the sum of, this is handshaking lemma. In a graph, the sum of all degrees of all the vertices is equal to twice the number of edges. If you add all the degrees of all the vertices in a graph, so it will be equal to 2 into number of edges in that graph. For example, let's see an example. Suppose I have this graph. So can you tell me how much is the total sum of degrees? So vertex A is, yes, vertex A is of 2 degrees. Total is 6, right? Sum of degrees is 6. And how many edges are there? 3. So 2 into 3 is 6. So so it's true for every graph. So if for any graph, if I add one more edge, now add the total number of degrees. 1 plus 3 plus 2 plus 2, 4. Right? 2 into 4, that is 8. Total number of degrees would be 8. And number of edges are 4. So 2 times 4, that is 8. So this is true for every graph. ठीक है? हाँ. तो हाँ, AC वाला नहीं लगाएंगे इस तरह से. अब देखो डिग्री कितनी है, 1 + 1 + 2 कितनी होगी, 4. और एजेस कितनी है, 2. तो वो इसलिए होता है क्योंकि एक एज हमेशा 2 डिग्री प्रोवाइड करेगी, है ना. एक एज की मैक्सिमम 2 ही डिग्री होंगी, एक किसी और वर्टेक्स पे होगी, एक किसी और वर्टेक्स पे होगी, तो इसीलिए ट्वाइस होता है. ठीक है. ओके. नल ग्राफ. तो
a graph having only vertices and no edges is called a null graph. अब यहाँ पे दो हमने vertices ड्रॉ कर दिए, तो दिस इज कंप्लीट ग्राफ. ठीक है, ये अलग अलग ग्राफ्स नहीं है, ये एक ग्राफ है पूरा. ठीक है, सो दिस इज अ null graph. Then trivial graph. A trivial graph is a graph which has only one vertex. This is a trivial graph. Right hand side पे जो ग्राफ है, this is a trivial graph. Then simple graph. Simple graph में दो चीजें नहीं होनी चाहिए. First is three चीजें नहीं होनी चाहिए. First is it should be undirected. Second, it should not contain any loops. And then loops means self loops. इस तरह का नहीं होना चाहिए. A to A. इस तरह की एज नहीं होनी चाहिए. ठीक है, एंड देन इट शुड नॉट कंटेन मल्टीपल एजेस. मल्टीपल एजेस क्या होती हैं? ए टू सी के बीच में दो एज नहीं होनी चाहिए. ए टू सी के बीच में ओनली वन एज शुड बी देयर. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड अ सिंपल ग्राफ. मल्टी ग्राफ में क्या होगा? मल्टीपल एजेस हो सकती है, सेल्फ लूप भी हो सकता है, ऑपोजिट ऑफ सिंपल ग्राफ. ठीक है, डायरेक्टेड ग्राफ, there is directions provided to each and every edge, that is called directed graph. And if there are no directions, that is called a undirected graph. Regular graph. Regular graph में each and every vertex has same degree. हर एक vertex की same degree होगी. That is called a regular graph. For example, every vertex has 3 edges. So 3 degree for every vertex. Complete graph. So a graph is called complete graph if every two vertices pair are joined by exactly one edge. So for all the vertices should be connected and there is only one edge between any two vertex. Okay, that is called a complete graph. Okay. Then connected graph. So all the vertices should be reachable. Reachable means there is at least one edge that connects all the vertices. So that is called a connected graph. And this is called a disconnected graph. This whole is a disconnected graph having 8 vertices. So A, B, C, D, E, F, G, H. So this whole is a this plus this. Both of these are completely makes a disconnected graph because we cannot reach to F from D. Okay? So that is disconnected graph. Cycle graph. So there is at least one cycle, minimum one cycle, maximum can be many. Okay, that is called a cycle graph. A simple graph that is called cyclic graph having at least one cycle. And cycle graph is a graph with n vertices. N edges is called a cycle graph. So n vertices and matlab equal number of vertices and edges, only one cycle. Okay, that is cycle graph. And in cyclic graph, minimum one cycle, maximum can be many. Okay, then acyclic graph. So graph having no cycles is called a acyclic graph. Finite graph. Finite number of vertices and edges is called a finite graph. And infinite number of vertices and edges is called a infinite graph. Bipartite graph. This is very important. So, what is a bipartite graph? You have two sets, set X and set Y. Set having two vertices, set Y having two vertices. Set X having A and B, set Y having C and D. So none of the vertices of set X should be connected to each other and none of the vertices of set Y should be connected to each other. There are only edges between one left point should belong to Y. So there should be interconnections. There should not be connections between the vertices of the same set. For example, over here, this is the set X. This is your set Y. So all the lines should be from set X to set Y. It should not be like A should be connected to B, never. So elements of one set should not be connected to each other. And C and D cannot be connected to each other. C and D can be connected to A and B, but not among themselves. Okay? So that is called a bipartite. Bi means two. So we can divide the whole graph into two sets. And if we delete
these two sets are separate, there is no interconnection among themselves in set X and set Y. Okay, so that is called a bipartite graph. Now there is another complete bipartite graph. If all the vertices of set X are connected to all the vertices of set Y, that is called a complete bipartite graph. Clear? Online students, this is clear up till now? मैम ये इसके पहले वाली स्लाइड एक बार और बता दीजिए। ओके, सो एक सेट है X, ठीक है, और एक सेट है Y। दोनों के अंदर सेट ऑफ वर्टिसेस हो सकते हैं 1 2 3 4, इसके अंदर भी हो सकते हैं 1 2 3 4। तो जो लेफ्ट सेट है X, इसके बीच में कोई एज नहीं होगी किसी भी वर्टेक्स के बीच में, और इसी तरह जो राइट सेट है Y, इसके जितने भी वर्टिसेस हैं इनके बीच में आपस में कोई एज नहीं होगी, जितनी भी एजेस होंगी वो फ्रॉम X टू Y ही होंगी, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि इनके आपस में भी कोई एज ना हो और लेफ्ट और राइट के बीच में भी कोई एज ना हो, दैट इज ऑल्सो बाइपोटाइट। बट ऐसा हो सकता है इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके थर्ड एलिमेंट से कनेक्टेड हो, ठीक है, और सेकेंड एलिमेंट लेट से सेकेंड एलिमेंट भी थर्ड से कनेक्टेड है, दिस इज बाइपोटाइट। बट सेट X का कोई भी एलिमेंट आपस में कनेक्टेड नहीं होगा और Y का कोई भी एलिमेंट आपस में कनेक्टेड नहीं होगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड अ बाइपोटाइट ग्राफ। अभी क्लियर है? यस मैम। ओके, कंप्लीट बाइपोटाइट में सारे हर एक वर्टिसेस ऑफ सेट X वुड बी कनेक्टेड टू हर एक वर्टिस ऑफ सेट Y, ठीक है। तो दिस इज कंप्लीट बाइपोटाइट। यहाँ पे देखो जैसे कि सेट सेट ए है और दिस इज सेट बी, तो हर एक वर्टेक्स ए का कनेक्टेड है सी से भी डी से भी, ऐसे ही बी जो है कनेक्टेड है सी से भी डी से भी, दोनों से कनेक्टेड है। So this is a complete graph diagram. Then pseudographs. So graph that may include loops and possibly multiple edges connecting same pair of nodes are called pseudographs. ठीक है। ग्राफ्स जिसके अंदर लूप्स हो सकते हैं और मल्टीपल एजेस हो सकती हैं कनेक्टिंग सेम पेयर ऑफ नोड इज कॉल्ड अ सूडोग्राफ, ठीक है। मिक्स ग्राफ क्या होता है? जिसके अंदर डायरेक्टेड एजेस भी हो और अनडायरेक्टेड एजेस भी हो, दैट इज कॉल्ड अ मिक्स्ड ग्राफ। सब ग्राफ होता है किसी ग्राफ का कुछ पोर्शन उठा के हमने अलग से ड्रॉ कर दिया, दैट इज अ सब ग्राफ। उस पोर्शन में खाली वर्टिस भी हो सकते हैं, उस पोर्शन में खाली एजेस भी हो सकती है, उस पोर्शन में दोनों का मिक्स भी हो सकता है, दैट इज कॉल्ड अ सब ग्राफ। Operations: extracting the subgraph, conversions of graph, modifications of graph. एक्सट्रैक्टिंग देख लेते हैं। सो इसमें इन्होंने क्या किया, ग्राफ है एक GVE, इससे दो सब ग्राफ्स बनाए हैं, एक्सट्रैक्ट किया है कुछ पोर्शन। अब सब ग्राफ 1 में जो पोर्शन एक्सट्रैक्ट किया है दैट इज ओनली सेट ऑफ वर्टिसेस, और सब ग्राफ 2 में जो पोर्शन एक्सट्रैक्ट किया है दैट इज सेट ऑफ वर्टिसेस एज वेल एज एजेस, ठीक है, वो एक्सट्रैक्ट किया है। सो दिस इज फर्स्ट ऑपरेशन। सेकेंड ऑपरेशन इज नेबरहुड। नेबरहुड मीन्स नेबर मतलब पड़ोसी, है ना। तो किसी भी वर्टेक्स का जो आसपास के नेबर के जो भी वर्टिसेस हैं वो सारे लेने हैं और उस पर इंसिडेंट सारी एजेस लेनी है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ जो वर्टेक्स 1 है इसका नेबरहुड में क्या है, 2 है और 4 है, ठीक है, और तो कुछ है नहीं, तो 2 भी उठा लो 4 भी उठा लो और उनके बीच में जितनी भी एजेस हैं वो भी उठा लो। सो दैट इज जो राइट हैंड साइड पे जो ड्रॉ किया है दैट इज नेबरहुड ग्राफ फॉर वर्टेक्स 1, ठीक है। अब नेबरहुड ये था डिस्टेंस 1 पे, अगर मुझे चाहिए कि डिस्टेंस 2 पे, डिस्टेंस 2 पे कौन कौन से नेबर है, तो 1 से कौन कौन सा है, एक 3 है बस, है ना। तो 3 है आउट ऑफ 2 वाया 2 एंड वाया 4, ठीक है, दो ऑप्शन है। तो हमने पूरा एक्सट्रैक्ट कर लिया जो भी हम 1 से जहाँ जहाँ पहुँच सकते हैं विद अ डिस्टेंस 2, ठीक है। तो दैट इज नेबरहुड ग्राफ फॉर वर्टेक्स एट 1 फॉर डिस्टेंस 2। राइट हैंड साइड पे जो है तो वर्टेक्स 1 के लिए डिस्टेंस 2 तक हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं वो ग्राफ। क्लियर है? यस मैम। ओके, इज एनीवन प्लीज म्यूट योर माइक्स एवरीवन। इज एनीवन सबके म्यूट है ना माइक? ठीक है, इसके बाद है स्पैनिंग ट्री, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है।
ये स्पैनिंग ट्री ऐसा टॉपिक है जो आपको फ्यूचर में भी हमेशा यूज होगा, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर्स में भी होगा, है ना, एल्गोरिदम्स में। तो स्पैनिंग ट्री क्या होता है? स्पैनिंग ट्री होता है हर एक वर्टेक्स कनेक्टेड होनी चाहिए, ठीक है, और साइकिल नहीं होनी चाहिए। स्पैनिंग ट्री, ट्री का मतलब क्या होता है? ट्री वही है जिसके अंदर साइकिल नहीं है, ठीक है, ऐसा ग्राफ जिसके अंदर साइकिल नहीं है, दैट इज अ ट्री। लेकिन उसमें सारे वर्टिसेस आपस में कनेक्टेड होने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ वर्टेक्स लेफ्ट आउट हो जाए, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड अ स्पैनिंग ट्री। अब स्पैनिंग ट्री जो होता है, हर एक वर्टेक्स को हमने उठाया है, हर एक वर्टेक्स के बीच में एज होनी चाहिए, प्लस देयर आर नो साइकिल्स, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ स्पैनिंग ट्री। कन्वर्जन फ्रॉम डायरेक्टेड टू अनडायरेक्टेड ग्राफ। जब हम किसी डायरेक्टेड ग्राफ को अनडायरेक्टेड में कन्वर्ट करेंगे तो हम कॉरस्पॉन्डिंग एजेस को रिप्लेस कर देंगे, कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्टेड एजेस को रिप्लेस कर देंगे विद अनडायरेक्टेड एजेस, ठीक है। लेकिन ऑपोजिट में उल्टा होता है, जब हम किसी अनडायरेक्टेड ग्राफ को डायरेक्टेड में रिप्लेस करेंगे, बिकॉज अनडायरेक्टेड ग्राफ में वी कैन गो बोथ वेज, ठीक है। तो एक एज के कॉरस्पॉन्डिंग हम दो एज ड्रॉ करेंगे, लेफ्ट फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू ए, ठीक है। तो हर एक एज के कॉरस्पॉन्डिंग हमने दो एजेस ड्रॉ किए हैं, ठीक है, इन अ डायरेक्टेड ग्राफ। रिवर्सिंग ए ग्राफ, रिवर्सिंग में क्या कह सकते हैं कि अगर ए टू बी एच था तो हमने उसकी जगह किसको रिप्लेस कर दिया? बी टू ए, ठीक है। अब एक होता है एडजेसेंसी मैट्रिक्स। एडजेसेंसी मैट्रिक्स, ठीक है, ये क्या होता है? हमारे पास एक ग्राफ है, सपोज दिस वाज द ग्राफ 1 2 एंड 3, ठीक है। सो एडजेसेंसी मैट्रिक्स इज अ डेटा स्ट्रक्चर, इज अ वे टू स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ ग्राफ, ठीक है। और इस डेटा स्ट्रक्चर में क्या है स्टोर करते हैं हम? वर्टिसेस स्टोर करते हैं, ठीक है, 1 2 एंड 3, ठीक है, 1 2 एंड 3, एंड वी स्टोर इन्फॉर्मेशन। 1 से 1 के बीच में एज है? नहीं है। अगर सेल्फ लूप होता तो होती, ठीक है, तो अभी नहीं है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे है 1 से 2 के बीच में है वहाँ पे 1 लिख देंगे, 2 से 3 के बीच में है तो वहाँ पे 1, रेस्ट ऑल 0, ठीक है ना। तो इस तरह की जो मैट्रिक्स होगी दैट इज एडजेसेंसी मैट्रिक्स। जब हम किसी ग्राफ का ट्रांसपोज करते हैं या रिवर्स करते हैं तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या हो जाती है? ट्रांसपोज हो जाती है, ऑब्वियसली हो जाएगी ना। 1 से 2 को हमने रिवर्स कर दिया 2 से 1 में, तो जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स होगी उसकी दैट विल बी ट्रांसपोज ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स, है ना। देन डिराइविंग अ सिंपल ग्राफ। सिंपल ग्राफ क्या होता है? उसके अंदर मल्टीपल एजेस नहीं होनी चाहिए और सेल्फ लूप नहीं होनी चाहिए। तो जब हम किसी ग्राफ को कन्वर्ट करेंगे सिंपल ग्राफ में, व्हाट विल डू इज वी डिलीट ऑल द सेल्फ लूप्स एंड वी डिलीट ऑल द मल्टीपल एजेस, ठीक है। फाइनली हमारे पास क्या बचा? सिंपल ग्राफ। डिलीटिंग अ वर्टेक्स, सपोज हमने वर्टेक्स नंबर 6 को डिलीट किया, लेफ्ट हैंड साइड पे जो ग्राफ है उसमें vertex 6 को we have deleted, so we have to delete all the edges incident on that vertex plus that vertex itself, ठीक है। तो हमने क्या किया? 6 to 1, 6 to 2 and 6 to 5, all the three edges are removed, ठीक है। this is also another operation on the graph. Contract vertex, so it can be done by contracting two vertices into one, जैसे कि यहाँ पे हमने 1 और 2 को contract किया है, ठीक है। 1 और 2 को कॉन्ट्रैक्ट करके हमने न्यू वर्टेक्स वी हैव जनरेटेड दैट इज 1,2। तो 1 से जितनी भी एजेस जा रही थी और 2 से जितनी भी एजेस जा रही थी उन सबको हमने मर्ज कर दिया, ठीक है। तो 1 से जा रही थी 4 पे और 3 पे, तो यहाँ पे हमने दिस 1 to 4 एंड 1 to 3, ठीक है। अब 2 से जा रही थी 3 पे और 4 पे, तो अब हमने 2 से अगेन दो एजेस लगाई 4 पे और 3 पे, ठीक है। हम एजेस डिलीट नहीं करेंगे, ठीक है। हमने क्या किया? मल्टीपल एजेस बना दी, ठीक है, मर्ज करके 1 और 2 को, ठीक है ना। क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। ओके।
बाकी स्टूडेंट्स को सिंपल है। सिमिलरली वी कैन डिलीट एज, हम किसी एज को डिलीट कर सकते हैं, लेकिन हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स को नहीं डिलीट करेंगे, है ना। कॉन्ट्रैक्टिंग एन एज, इसी तरह से हम एज को भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने एक वर्टेक्स, दो वर्टेक्स को कॉन्ट्रैक्ट किया, इसी तरह से हम एजेस को भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इट रिमूव्स द एज फ्रॉम द ग्राफ एंड मर्जेस द वर्टिसेस ऑन विच द एज इज इंसिडेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस तरह का कुछ एज थी और हमने वो डिलीट की, तो अब डिलीट करने के बाद ये बन जाएगा, ये 1 था और ये 2 था, तो अब न्यू बन जाएगा 1,2, ठीक है। हमने एज कॉन्ट्रैक्ट किया। एडजेसेंसी लिस्ट, तो हमने देखा एडजेसेंसी मैट्रिक्स। देयर आर टू वेज टू स्टोर अ ग्राफ। फर्स्ट इज एडजेसेंसी मैट्रिक्स, सेकंड इज एडजेसेंसी लिस्ट। इन एडजेसेंसी लिस्ट हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हर एक वर्टेक्स लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। इट्स अ वे टू स्टोर द ग्राफ इन अ कंप्यूटर, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम सारी वर्टेक्स स्टोर कर लेते हैं और हर एक वर्टेक्स पे कौन कौन सी एज इंसिडेंट है वो इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं। तो इट्स अ लिस्ट, ठीक है। लिस्ट की क्या प्रॉपर्टी होती है, वेरिएबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं हर एक एलिमेंट से एसोसिएटेड, है ना। ये हो सकता है, तो जैसे कि ए से एसोसिएटेड बी था, सी था और ई था। यहाँ पे देखो है कि नहीं, ए से बी, ए से सी और ए से ई, है ना। तो लिस्ट में हम एज की इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं फॉर एसोसिएटेड विद एवरी वर्टेक्स, ठीक है। सेकेंड वे है हमारा, दिस इज एडजेसेंसी लिस्ट फॉर डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ में हम डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग स्टोर करेंगे। ए से बी जा रहा है तो हम ए वर्टेक्स पे हम बी लिखेंगे बट बी पे ए नहीं लिखेंगे, है ना। दैट इज फॉर डायरेक्टेड ग्राफ। अनदर वे वाज जो अभी हमने डिस्कस किया, क्या था वो, एडजेसेंसी मैट्रिक्स। जहाँ जहाँ पे डायरेक्शंस हैं वहाँ वहाँ पे आप, जहाँ जहाँ पे एजेस हैं वहाँ वहाँ पे आप 1 लिख दोगे, अदरवाइज आप 0 लिख दोगे, ठीक है। दैट इज एडजेसेंसी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो बनती है दैट इज बिटवीन वर्टेक्स एंड वर्टेक्स, ठीक है। और जो लिस्ट बनती है, फॉर एवरी वर्टेक्स वी स्टोर इन्फॉर्मेशन ऑफ एज, एज इंसिडेंट ऑन दैट वर्टेक्स, ठीक है ना। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ एडजेसेंसी मैट्रिक्स। अब यहाँ पे 3, 2 जहाँ पे लिखा है, मल्टीपल एजेस होंगी वहाँ पे, ठीक है। जिन दो वर्टेक्स के बीच में मल्टीपल एजेस होंगी, 2 एज होंगी, तो काउंट उतना इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। पाथ्स एंड साइकिल्स, यहाँ से विल स्टार्ट द नेक्स्ट लेक्चर। थोड़ा सा लेंथी था आज का लेक्चर बट स्टिल बहुत इजी था। कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो पूछो।